So today we are discussing impedance audiometry. So impedance means some sort of resistance. So impedance audiometry has two parts. One is called as the tympanometry and other part is the acoustic reflex or acoustic reflex audiometry. So what is the principle behind this test? Suppose we are giving some sound to the extraordinary canal, it goes and strikes the tympanic membrane. So some part of that energy, the majority part will be transmitted along, but some part of the energy will be reflected back. So we are trying to assess that energy which is reflecting back, and based on that we are getting a graph called as the tympanogram, and it is descriptive of certain conditions in the middle ear that will produce certain types of graph. So we are measuring this reflected energy from the tympanic membrane. Okay, so how does it how we are doing this test? What we are doing in this test? The instrument comprises of a 3-channel probe that snugly fits inside the extraordinary canal. That has 3 channels. एक चैनल से we are giving the sound. कितना sound? According to books, 220 hertz of sound. Okay. One channel collects the reflected sound, or it has the microphone in it. Okay. And the third channel varies the pressure inside the, means that is a closed space. Now outside is the probe, inside is the tympanic membrane, and this is sealed. So the third channel will vary the pressure inside the canal. So we are measuring what? The movement of the tympanic membrane based on various types of pressure. The sound energy reflected back based on the various this pressure in the extraordinary canal. So जब आप वो ग्राफ देखेंगे अभी जो शेयर किया है, in that you will find on x axis what is there? Pressure. ठीक है? So from 0 it is going towards positive pressure and towards negative pressure. ठीक है? And y axis में क्या है? Compliance. What is compliance? The movement of the membrane. How compliant it is. How freely it moves. ठीक है? तो जो नॉर्मल ग्राफ होगा, ठीक है, उसको ए टाइप ग्राफ कहते हैं. ठीक, जीरो प्रेशर में जो बीच वाला लाइन है ना, उतना कंप्लायंस होना चाहिए. ठीक है, दैट इज ए नॉर्मल टाइप ऑफ ग्राफ. अब ए डी हो सकता है या ए एस हो सकता है. ए डी मतलब क्या हो रहा है, उसको पढ़ेंगे कैसे? एट अ नॉर्मल प्रेशर इंक्रीज कंप्लायंस. ठीक, एट अ नॉर्मल प्रेशर इंक्रीज कंप्लायंस. इसका मतलब क्या हुआ, विजुअलाइज करो. एट अ नॉर्मल प्रेशर इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. कब होगा? अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पतला हो जाए, लैक्स हो जाए, फ्लैसिड हो जाए, तब मूव कर सकता है. या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जो चीज पकड़ के रखा है वो एब्सेंट हो जाए. तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या स्ट्रक्चर पकड़ के रखता है? जो मिडिल ईयर में, वेरी गुड, ऑसिकल्स. समझ में आया बात? तो ए डी टाइप ऑफ ग्राफ कब बनेगा? जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लैक्स हो जाए या थिन्ड आउट हो जाए. पतला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इजी मूव कर रहा है. ठीक है, जैसे जिसको हील टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं. पहले बच्चे में परफोरेशन था, वो हील कर गया, लेकिन जो हील किया दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वेरी लैक्स, वेरी थिन, एंड इट इजीली मूव्स ऑन प्रेशर चेंजेस. ठीक,
और दूसरा कब हो सकता है, जब ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी हो जाए। ठीक, तो ए डी, डी फॉर डिसकंटिन्यूटी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी में द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल मूव, मतलब इंक्रीज कंप्लायंस एट ए नॉर्मल प्रेशर। ठीक, अब आता है थर्ड वाला ए एस, ए डी हो गया, ए एस। इसमें इसको बोलेंगे कैसे, डिक्रीज्ड कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर। ये कब होगा, मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव नहीं कर पा रहा है, समथिंग इज होल्डिंग इट इनसाइड। तो मेम्ब्रेन अगर थिक हो गया है, हाँ, उससे भी ज्यादा जरूरी फिक्सिसिटी ऑफ द ऑसिकल्स। ठीक है, जैसे ओटोस्क्लेरोसिस हो सकता है, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैलियस का हेड अगर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल मूव लेस एट ए नॉर्मल प्रेशर। ठीक, सो ए टाइप ऑफ ग्राफ इज क्लियर नाउ। अब आते हैं बी टाइप ऑफ ग्राफ। बी टाइप में क्या दिख रहा है, it is a flat graph across all the pressure ranges. The graph remains flat, more or less a straight line. ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलो। वेरी गुड, तो बी टाइप ऑफ ग्राफ is seen in tympanic membrane perforation, and we'll be asking this in exam. ठीक, और कहाँ मिल सकता है, अगेन कोई अगर मिडिल ईयर में फ्लूइड हो जाए, ठीक है, तो भी कंप्लायंस, कोई भी प्रेशर करो सेम ऐसा रहेगा। ठीक है, फ्लैट ग्राफ। तो हर एक कंडीशन का, हर एक टाइप ऑफ ग्राफ के आपको दो दो कंडीशन आनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, नाउ सी टाइप ऑफ ग्राफ पे आओ, वो क्या है, how will you express it? The tympanic membrane moves on negative pressure, or it's compliant on in negative pressure। इसका मतलब क्या है कि टिम्पैनिक में पहले से ही चिपका हुआ है, तभी ना नेगेटिव प्रेशर दोगे, उसको सक करोगे, तब जाके वो मूव करेगा। तो ये कब होगा, यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन में हो सकता है, और रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए द ब्यूटी ऑफ दिस टेस्ट इज कि इट टेल्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द मिडिल ईयर विदाउट लुकिंग इनसाइड। क्या पैथोलॉजी है, बस हम टेस्ट से ही बहुत सारी चीजें डिलिनिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गया प्रेशर का और कंप्लायंस का। ठीक, एक चीज और होता है जो इसको रीड करने में इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल प्लस माइनस मिडिल ईयर। The normal volume of the extraordinary canal in children is around 1 ml and it is around 2 ml in adults. वॉल्यूम गेज कर सकते हैं ना, कितना अमाउंट ऑफ एयर कॉलम अंदर में है, नहीं गेज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, यस और नो। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है तो वो भी क्या डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कब करेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल है, उसका एक वॉल्यूम है 1 ml 2 ml। अब 1 वाला बच्चे में 2 कब होगा, अगर परफोरेशन हो गया तो, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, परफोरेशन हुआ तो। अगर एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में कुछ है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बच्चों में 1 से कम हो जाएगा, बड़ों में 2 से कम हो जाएगा। तो वो आपको डिनोट करेगा कि एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में कुछ है।
मान लो अभी जैसे डिस्कस कर रहे हैं किसी का ऑस्टियोमा है, उसमें क्या होगा टिम्पेनोमेट्री फाइंडिंग्स, उसमें जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब किसी का अगर परफोरेशन है उसका क्या होगा, वॉल्यूम में मिडिल ईयर का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा तो वो इंक्रीज कर जाएगा। तो वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रेशर विथ कंप्लायंस इन अकॉर्डिंग्स टू द वॉल्यूम, दोनों के साथ हमें बोलना है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कितना वॉल्यूम होता है, चिल्ड्रन का 1 ml, एडल्ट्स का 2 ml, मोर देन 1.5 ml is pathological in children, more than 1.5 2.5 ml in adults is increased volume, ठीक है। तो ये हुआ टिम्पेनोमेट्री ब्रॉडली स्पीकिंग। अब आते हैं एकॉस्टिक रिफ्लेक्स पे, ठीक है। तो व्हाट इज एकॉस्टिक रिफ्लेक्स? ये ग्राफ क्लियर है, कोई डाउट इसमें? क्यों कर रहे हैं? मिडिल ईयर का फंक्शन टेस्ट करने के लिए। क्या देख रहे हैं? कंप्लायंस ऑफ द tympanic membrane across various pressure ranges, ठीक है, in accordance to the extra-aortic canal volume, ठीक। हम साउंड को टेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम साउंड के रिफ्लेक्शन को गेज कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो कितना कंप्लायंट है, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। साउंड को टेस्ट करने के लिए तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, उसमें हम वेरियस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एट वेरियस लाउडनेस ऑफ साउंड टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या टेस्ट किया है, हम फंक्शन ऑफ द मिडिल ईयर टेस्ट कर रहे हैं वाया चेंजिंग द प्रेशर इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनाल, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर साउंड इंटेंसिटी। अब आते हैं हम लोग इस पे अकॉस्टिक रिफ्लेक्स। तो व्हाट इज अकॉस्टिक रिफ्लेक्स, जिसको स्टेपिडियल रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। ये क्या है? ये हाई फ्रीक्वेंसी नहीं, हाई इंटेंसिटी साउंड। फ्रीक्वेंसी अलग है, इंटेंसिटी अलग है। हाँ, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी इज लाउडनेस। जब बहुत तेज साउंड होता है तो दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ आवर ईयर so that the inner ear doesn't get damaged on exposure to loud noises, ठीक है। सो इनर ईयर, मिडिल ईयर में दो मसल्स हैं, वन इज स्टेपिडियस एंड वन इज टेंसर टिम्पेनाई, ठीक है। तो अब टेंसर टिम्पेनाई, क्या नाम है इसका? टेंसर टिम्पेनाई। ये टेंस करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। तो उससे क्या फायदा होगा? जब बहुत लाउड नॉइज गया तो उसने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस कर दिया, तो क्या फायदा होगा? ये जो अभी पढ़ाया कि मेजॉरिटी ऑफ द साउंड या फिर a good amount of the sound will be reflected out, it will not be transmitted, ठीक। और दूसरा क्या हेल्प करता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है? द स्टेपिडियस मसल। ये क्या करता है? ये हेड ऑफ द स्टेपिस में, पिरामिडल एमिनेंस से जाके हेड ऑफ द स्टेपिस में लगता है। इनर ईयर में ट्रांसमिट होने के लिए साउंड को क्या चाहिए? ऑसिकुलर चेन पूरा मूव करना चाहिए, तब तो इनर ईयर को स्टिमुलेट करेगा। ये स्टेपिडियस मसल क्या करेगा? हेड ऑफ द स्टेपिस को टाइटली, उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऊपर के ऑसिकुलर चेन वाइब्रेट किया, लेकिन वो पूरा का पूरा वाइब्रेशन नहीं पहुंच पाया इनर ईयर में। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेपिडियस मसल। सो एट व्हाट डेसिबल और एट व्हाट लाउडनेस दिस मैकेनिज्म गेट्स एक्टिवेटेड? अराउंड 70 to 90 डेसिबल ऑफ साउंड, ठीक है जी। अगर 70 डेसिबल ऑफ साउंड अगर हमारे ईयर को कभी एक्सपीरियंस करता है तो ऑटोमेटिकली दिस रिफ्लेक्स गेट्स एक्टिवेटेड, दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म गेट्स एक्टिवेटेड। व्हाई इट गेट्स एक्टिवेटेड? सो दैट आवर इनर ईयर डजंट गेट डैमेज्ड। बिकॉज इनर ईयर में क्या होता है, क्या पढ़ाया था कल? हेयर सेल्स। जो शेयरिंग एक्शन होता है
बहुत तेज अगर वाइब्रेशन जाएगा तो उससे वो डैमेज हो जाता है एंड उनका रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसीलिए इट शुड नॉट गेट डैमेज्ड, दैट इज व्हाई दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज देयर। अब इसको टेस्ट करने से हमें बहुत सारी चीजें पता लग सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ये 70 डेसिबल पे एक्टिवेट होता है। अब आपका होमवर्क है कि इसका पाथवे आपको पता होना चाहिए, ये एक्टिवेट होता कैसे। साउंड है, ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व इन्वॉल्व होगा, तो 8th नर्व इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद वो कॉक्लियर न्यूक्लियस में गया, ठीक है। स्टेपिडियस मसल इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्टेपिडियस मसल का नर्व सप्लाई क्या होता है? फेशियल नर्व, वेरी गुड, 7th नर्व। तो कॉक्लियर न्यूक्लियस तो 8th नर्व का न्यूक्लियस है, फेशियल नर्व न्यूक्लियस में वहां से गया, थ्रू द फेशियल नर्व इंपल्स आया कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक। तो ये हो गया इप्सिलैटरल पाथवे। उसने बोला बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन, इस कान में अगर 70 डेसिबल आता है तो ये कान भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कहीं पे क्रॉस हो रहा है, तो सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस पे क्रॉस होता है, कॉक्लियर न्यूक्लियस इप्सिलैटरल, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से फिर कॉन्ट्रालैटरल फेशियल नर्व न्यूक्लियस, फिर सेम पाथवे, ठीक है। तो ये पाथवे पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू। अब हम जब टेस्ट करेंगे, ये तो हुआ कि प्रोटेक्शन इन द नॉर्मल वर्ल्ड सिनेरियो, अगर जब हम टेस्ट करेंगे तो इसी के थ्रू हम अब 70 डेसिबल ऑफ साउंड दे देंगे एक कान को, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि दोनों कान का स्टेप, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। समझ में आया बात, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि हाउ कि वेदर द स्टेपिडियल रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट और नॉट। अब इससे हम क्या क्या, इससे बेनिफिट क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला है कि अगर स्टेपिडियल रिफ्लेक्स मिल रहा है तो तुम्हें ये पता है कि उस कान का हियरिंग ठीक है। मान लो कोई मैलिंगर कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, पीटीए में बैठा हुआ है, कुछ नहीं बता रहा है, नहीं कुछ नहीं सुनाई दे रहा है सब कुछ, लेकिन वो मैलिंगर समझते हो, दे आर फेनिंग डेफनेस, they are saying I am not able to hear. So how you will objectively find out कि whether the patient really is not able to hear or he is feigning. So one of them is this. आपने देखा कि उसका स्टेपिडियल रिफ्लेक्स इंटैक्ट है कि नहीं। अगर इंटैक्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि उसको उसका हियरिंग है, ठीक। दूसरा, एकदम छोटे बच्चे अगर हैं, अगर उनका भी हियरिंग अगर गेज करना है तो हम इससे कर सकते हैं, एकॉस्टिक रिफ्लेक्स से पता कर सकते हैं। अगर पाथवे इंटैक्ट है, 8th नर्व काम करेगा, कॉक्लियर न्यूक्लाई काम करेगा, तभी ना वो हियर करेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम पता कर सकते हैं क्या कि 7th नर्व ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसके पाथवे में 7th नर्व है। मान लो 7th नर्व का पैल्सी हुआ है, ठीक है। क्या होता है 7th नर्व पैल्सी में, क्या होता है, फाइंडिंग क्या होता है, जिधर होता है उधर का फेशियल डिविएशन होता है। लेकिन आपको ये पता करना है, मान लीजिए कि लीजन कहाँ पर है, ठीक है, लीजन कहाँ पर है। दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, अपर मोटर नहीं, लोअर मोटर, ठीक है। उसमें आपका फेशियल डिविएशन हुआ, ठीक। तो अब वो लीजन कहाँ पर है, अगर मान लो स्टेपिडियल रिफ्लेक्स सही आ रहा है, इसका मतलब लीजन कहाँ पे होगा, उस मसल के नीचे होगा। कोई दिक्कत है समझने में? स्टेपिडियस मसल के लिए जो नर्व टू स्टेपिडियस निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, फेशियल नर्व से। अगर वो मसल काम कर रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा,
उसके बाद में होगा, इतना तो ठीक है। तो आप लोकेशन पता कर सकते हैं इससे, ठीक है, समझ में आया बात। और एक और होता है कि अगर कोई ब्रेन स्टेम लीजन होगा तो एक तरफ का आएगा, दूसरे तरफ का नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉस जहां कर रहा है तो वहां पे वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर तुम्हारा स्टेपिडियल रिफ्लेक्स अगर लोअर लाउडनेस में आने लगे, 40 डेसिबल पे ही एक्टिवेट हो गया मान लो, तो वो क्या सिग्निफाई करेगा? वो सिग्निफाई करेगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का माने होता है कि द नॉर्मल टॉलरेबल साउंड्स बिकम इनटॉलरेबल। ये नॉर्मली कॉक्लियर लीजन्स में होता है। रिक्रूटमेंट फिनोमेनन इज सीन इन कॉक्लियर लीजन्स। जब आप ऑडियोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैंने बोला था ना सेंसरी न्यूरल। अब सेंसरी न्यूरल में सेंसरी है कि न्यूरल है कैसे पता करेंगे? इसमें बता रहा था ना तुम्हारे क्लिनिक्स में, दो हेयरिंग लॉस आप जानते हो, एक कंडक्टिव और एक सेंसरी न्यूरल। अब सेंसरी न्यूरल में भी तो दो चीजें हैं, सेंसरी पार्ट है दैट इज द कॉक्लिया, न्यूरल पार्ट है दैट इज द एट नर्व, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा खराब है कैसे पता करेंगे? तो उसमें हम रिक्रूटमेंट को यूज करते हैं। रिक्रूटमेंट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कॉक्लियर लीजन है। तो रिक्रूटमेंट में क्या होगा कि जो साउंड नॉर्मली टॉलरेबल होता है वो होना चाहिए, जो नॉर्मली टॉलरेबल वो इनटॉलरेबल हो जाता है। इसका मतलब कॉक्लियर रिफ्लेक्स विल बी प्रेजेंट एट अ मच लोअर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अंडरस्टूड? जो 70 to 90 में जो एक्टिवेट होता है वो 40 to 50 में ही एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें बताएगा कि 40 डेसिबल में एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब क्वेरी देयर इज सम कॉक्लियर पैथोलॉजी। बात सब इंटैक्ट है लेकिन पैथोलॉजी है कहाँ पे? कॉक्लियर लीजन है। व्हाई? बिकॉज रिक्रूटमेंट फिनोमेनन इज गेटिंग एक्टिवेट, ठीक है। तो ब्रॉडली टिम्पेनोमेट्री अकॉस्टिक रिफ्लेक्स यही होता है। इसको जाके पढ़िएगा तो और थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा। एंड दैट ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको कैसे बोलते हैं हम? इंक्रीज कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। फ्लैट कर्व को कैसे बोलेंगे? द कंप्लायंस इज ऑलमोस्ट सिमिलर एट ऑल द प्रेशर लेवल्स, या ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे? इंक्रीज कंप्लायंस एट नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। अब जो तुम्हारा एडी ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज कंप्लायंस एट नॉर्मल प्रेशर। तो उसमें जो कंप्लायंस जहां पे कर्व मीट करना चाहिए वो मीट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऑस्की में रखा जाएगा और वाइवा में रखा जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अकॉस्टिक रिफ्लेक्स भी घूम फिर के हम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को गो एंड स्टडी, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखने का जरूरत तो नहीं है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो उसका इंटैक्ट है, देखने का क्या जरूरत है? हम तो उसको गेज कर रहे हैं। वही तो फाइंडिंग्स आएंगे ना, ग्राफ तभी तो बन रहा है। मेजरमेंट तो वही कर रहे हैं ना, ठीक है। इम्पीडेंस को ही तो मेजर कर रहे हैं। जब स्टेपीज जब टॉट होगा तो क्या होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टॉट हो जाएगा, ऑसिकुलर चेन फिक्स हो जाएंगे, तो मोर एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। माने वहां पे हम प्रेशर वेरिएशन नहीं कर रहे हैं। देखो एक टेस्ट से हम भाई कई सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज दिस एकॉस्टिक रिफ्लेक्स।